we're talking about Hinship now. So we're talking now about Kn curves. So Kn curves. So let this be the diagram. This is key. This is M. This is theta. This is N. This is G. This is Z. This is X. This is theta. This is perpendicular. So assumed actual. Okay. So let's write down a paragraph on Kn curves. Kn curves or tables. Kn tables they are called. They're also called as Kn tables. So write down Kn curves are curves drawn by the shipyard and made available in the stability booklet. Just like Made available in the stability booklet, made available in the stability booklet, just like the cross curves. सर लास्ट वर्ड क्या था? Just like the cross curves. जैसे क्रॉस कर्व्स होते हैं वैसे के वैसे ही सेम ये भी शिपयार्ड देता है. Sir, can you please repeat, sir? Repeat the whole thing. Yes, sir. Just like cross curves. Just like cross curves. सो उसके बाद कुछ बोला आपने क्या? वो मेरा नेट थोड़ा सा लो हो गया था. नहीं, just like cross curves. Full stop. These curves are drawn
at an assumed kg equal to 0. At an assumed kg equal to 0. Since the actual kg of the ship will always be higher than the assumed kg, equal to 0. Hence, the sign of the vertical shift correction will always be dash. Can you fill up the dash? नेगेटिव Positive. ऊपर जा रहा है बढ़ जाएगा ना सर, नेगेटिव हो जाएगा। Always negative, sir. बिल्कुल ठीक। ऊपर जा रहा है, छोटा हो रहा है, तो नेगेटिव। इज दैट ओके? ये assumed kg equal to 0, मतलब the g is at the keel. यार्ड आपको उसके बेसिस पे दे रहा है डेटा। आपके जहाज की केजी हमेशा ज्यादा ही होगी, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऊपर, मोर देन 0। सो इसका मतलब है करेक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, कोई प्लस माइनस नहीं है, हमेशा माइनस ही होगी। हेंस द करेक्शन साइन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। kx plus xn is equal to kn. kx plus xn is equal to kn. Therefore, xn is equal to kn minus kx. But xn is equal to gz. So gz is equal to kn minus, अब ये kx upon kg is equal to sin theta. So kx will be equal to kg sin theta. ये समझ आ गया सबको? सर इसमें n डिनोट क्या कर रहा है सर? अभी मैं आता हूँ उस पर, अभी मैं समझाऊंगा वो, अभी उस पर आऊंगा मैं। पहले मैं खाली ये फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ पहले, अभी वो लिखवाऊंगा मैं। ये समझ आ गया यहां तक? ये ओके है? यस सर Okay. This kg is kfl, kg fluid. ये gz जो है ये हमारी बन जाती है करेक्टेड gz। ये हो गई हमारी वर्टिकल शिफ्ट करेक्शन, वर्टिकल शिफ्ट करेक्शन।
जो केजी यूज हो रही है इसमें is the final fluid kg, which is equal to kg solid plus FSC. Remember, GM में FSC माइनस होती है, kg में FSC प्लस होती है. So this was the correction due to vertical shift of G. और इसमें अब मैं अगर horizontal shift of G भी लगा दूं तो that will always be minus GGH cos theta. ये मेरा complete formula बन गया. This is horizontal shift correction. ये मेरा हिंशिप का फॉर्मूला है जो कि मैं हमेशा यूज करूंगा. Kn ये मुझे टेबल से मिलेगा माइनस kg फ्लूइड में यहां से कैलकुलेट करूंगा, kg सॉलिड उसमें FSC ऐड करूंगा sin थीटा माइनस GGH cos थीटा. ये मेरा फॉर्मूला बन गया. अब इसमें लिख लो आप नेक्स्ट लाइन. Thus Kn November, thus Kn is the uncorrected GZ of the vessel, is the uncorrected GZ of the vessel at an assumed kg equal to 0. रिपीट करना सर एक बार. Thus Kn is the uncorrected GZ of the vessel at an assumed kg equal to 0. Here N stands for normal. Here N stands for normal. तो ये नॉर्मल मतलब क्या हुआ? ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है ना, नॉर्मल 90 डिग्री. नॉर्मल. तो बेसिकली ये जो आपको Kn दे रहा है ये अनकरेक्टेड GZ दे रहा है एट एज्यूम्ड kg. यार्ड एज्यूम करता है कि वो उसमें यार्ड एज्यूम करता था कोई उसकी कुछ वैल्यू है 10 मीटर 7 मीटर व्हाटएवर उस पे देता था. इसमें यार्ड एज्यूम करता है 0 है तो हमारी एक्चुअल kg हमेशा ही इसके ऊपर होगी. इसका मतलब है हमेशा ही माइनस होगा. क्या माइनस होगा? kg फ्लूइड sin थीटा, ये माइनस होगा. kg फ्लूइड क्या चीज है? kg सॉलिड प्लस FSC. FSC को ऐड कर दो. और GGH सर, ये GGH आपने कल किया था. GGH is equal to WDH by W फाइनल. ये आपने कल किया था. Small w is the weight being shifted. DH is the distance from center line which is causing the list. So ये list वाला component है.
सर ये So- दोनों कर्व में डिजिट कर्व और केन कर्व में सबसे डिफरेंस यही है कि उसमें केजी अज्यूम सब वैल्यू रखता है, इसमें जीरो रखता है। करेक्ट। ये केन कर्व जो है ये यार्ड आपको देता है, गिवन बाय यार्ड, शिपयार्ड दे रहा है आपको। क्रॉस कर्व भी से काट देता है सर। क्रॉस कर्व भी यार्ड देता है, क्रॉस कर्व भी यार्ड देता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिप्स। जब आप जहाज पे जाओगे तो दो दो टाइप के जहाज होते हैं। जब ये ऑब्जर्व करोगे, जब आप स्टेबिलिटी बुकलेट खोल के देखोगे तो लाइक आई हैव सीन जनरली जो यूरोपियन बिल्ड शिप्स हैं, ओके, ships which are built in Germany, Portugal, Belgium, UK, all these European countries, जितने भी हैं, they generally use cross curves. तो वहां पे प्लस माइनस GGV यूज होता है, वो एज्यूम करते हैं कोई वैल्यू। जनरली फार ईस्ट बिल्ट शिप्स, सिंगापुर, जापान, चाइना, कोरिया, they use KN curves. तो उनके जो स्टेबिलिटी बुकलेट है उसमें केन कर्व्स यूज होता है। But this is not a hard and fast rule. I've sailed on rivers also. That means Far East built ships using cross curves, and I've sailed on European built ships using KN curves. वो reverse से भी possible है। But majorly I found this as a difference, as a standalone difference. But ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कहीं भी वो यूज कर सकते हैं, कोई भी but शिपयार्ड। majorly this is the differentiation which I observed. But ऐसा कहीं कोई written नहीं है. This was just an observation. So when you go on your next ship, you check your stability booklet और उसमें चेक करो और पता लगाओ कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है। GGH वाला यूज हो रहा है, सॉरी क्रॉस कर्व वाला यूज हो रहा है, या केन कर्व वाला यूज हो रहा है। कई जहाजों में स्टेबिलिटी बुकलेट में आई आल्सो सेल्ड जिसमें दोनों थे, वो भी ऐसा भी देखा मैंने। सर इंडिया में कौन सा होता है? केन, केन होता है। इंडिया में केन यूज होता है। So that way. So this was an observation. Just check it out. जब आप जहाज पे जाओगे अच्छी तरह से देखना। अगर आपके पास में अपने पुराने जहाज के वो पड़ी है, हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स पड़े हैं, तो उसमें चेक कर लेना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इज दैट ओके? Is that fine? Any doubts? Okay. Now open up Hinship particulars. अब Hinship particulars खोलो। Let me share my screen with you. Open up Hinship particulars. Let me know when you can see my screen. Yes, sir. Okay. So now you go simultaneously अपनी Hinship particulars physical copy भी खोलते रहो and open up, and जैसे जैसे मैं पेज पढ़ता जा रहा हूँ आप लोग भी पढ़ते जाओ, and come to the page where you can see KN tables. Come to KN
tables. That will be on page number, let me just see. कौन से पेज पे मिल रहा है आपको KN tables? 20 पे 22. 22. Let me just see. Okay. मेरी किताब में 21 है. That's okay. ये वाला पेज निकाल लो. मिल गया? Can you see? Now supposing I give you MV Hinship displacement 11,000 tons. Okay? MV Hinship displacement 11,000 tons. तो क्या करोगे आप? 11,000 पे जाओगे? जीरो की वैल्यू क्या होगी? 0. Absolutely right. 5 की वैल्यू क्या होगी? पांच डिग्री की क्या वैल्यू है? 0.788. करेक्ट, 0.788. पर ये सर क्या है? ये नेगेटिव लेंगे सर 0.788 नेगेटिव नहीं, ये क्या चीज है? What is this value? GZ तो KN है, KN ये सर, KN KN है, है। ये KN है, ये वाला KN है, ये KN है, ये वाला. समझ आया कि नहीं? सर एक बार दोबारा रिपीट करना सर पूरा टेबल. ओके, दोबारा. सपोजिंग मैं आपको क्वेश्चन में देता हूं MV Hinship डिस्प्लेसमेंट 11,000 टन्स. तो आप इधर जाओगे? यस और नो? यस. तो 5 डिग्री की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है 0.788. 0.788. तो ये वैल्यू क्या है? 0.788. ये KN की वैल्यू है. ये जो डायग्राम में ये KN है, ये उसकी वैल्यू दे रहा है. एट एज्यूम्ड kg इक्वल टू 0. समझ में आई? सिमिलरली ये 10 डिग्री की वैल्यू है, ये 15 की है, ये 20 की है, ये 25 की है. 30 के बाद ये कॉलम बढ़ जाते हैं, A and B आ जाता है. यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पढ़ो. Inclinations value given in A column are without superstructure, B column are inclusive of superstructure. हम कौन सा यूज करेंगे? ब्रावो. तो therefore 1130 डिग्रीज की मेरी वैल्यू होगी 4.612. ये ब्रावो का कॉलम में ले रहा हूं मैं. फिर अगले पेज पे जाता हूं. 40 डिग्रीज 5.982. 45 6.536. 60 ब्रावो 7.578 and 75 ब्रावो 7.777. ये समझ में आ गया कि नहीं? Have you understood everything whatever I just? डिवीजन सिर्फ 30 के बाद ही क्यों है, पहले क्यों नहीं? ओ यार, अब उसमें मत जाओ ना प्लीज. क्यों घुस रहे हो रिसर्च में? क्यों घुस रहे हो? वो इसलिए है कि A and B डिस्टिंक्शन बिकॉज जब ये जहाज बनते हैं ना, तो एक्चुअली ये जो हल बनता है वो अलग बनता है, सुपर स्ट्रक्चर बनता है अलग, एक अलग जगह पे, और फिर वो सुपर स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ओके, और फिर वो सुपर स्ट्रक्चर को जहाज के ऊपर में डाला जाता है. सुपर स्ट्रक्चर इज ऑलवेज केप्ट सेपरेट.
So the writing lever without the superstructure is given by the yard, and then when the superstructure is put dependent on owner's requirement. Owner कहता है कि भैया मेरा क्रू होगा 25, कोई ओनर कहता है नहीं मेरा क्रू होगा 15, तो सुपरस्ट्रक्चर वेरी करेगा ना. So depending on the requirement of the owner, the size and the weight of the superstructure will vary, and that will have a repercussion effect on the resultant writing lever of the vessel once the superstructure is put. So इसलिए कई जहाजों में ये अल्फा एंड ब्रावो अलग अलग करके दिया जाता है बाय द यार्ड. हमें हमेशा ब्रावो यूज करेंगे, हमारा जहाजों पे थैंकफुली सुपरस्ट्रक्चर होता है. ओके, इज दैट ओके? सर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं आ सकता ना कि विदाउट सुपरस्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसा कुछ. ना 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 ना, हमारा हमेशा हमें हमारे बी यूज करना है. हमें हमें ब्रावो यूज करना है, बात खत्म. ओके सर. ठीक है, इज दैट ओके? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? पेज नंबर 21 सर कैसे यूज यहाँ कर? पे जैसे राइटनिंग आर्म इन मीटर लिखा हुआ है, तो हाँ. वो जीजेड की वैल्यू, मतलब जीजेड की तो बोलते हैं राइटनिंग आर्म. अरे हाँ बोलते हैं, लेकिन अनकरेक्टेड है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. वो तो ठीक है सर, It is पर uncorrected. It is at an assumed kg equal to 0. ओके सर. मतलब G is at the keel. ओके यार्ड सर. आपको वो दे रहा है. अब आपकी kg 15 मीटर है, 13 मीटर है, डिपेंडिंग ऑन योर कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन, वो वेरी करती रहेगी ओके विद सर. एक्चुअल. तो आप सर करेक्शन वो लगाते केएन रहोगे. को एक करेक्ट करेंगे तो जीजेड आ जाएगा ना सर वो तो. बिल्कुल. तो आपके जो कॉलम बनेंगे टेबल के, जैसे कल बन रहे थे, अब आपके कॉलम ये बनेंगे, ये ये. अब आपके ये कॉलम है. तो अब आप जो है शुरू हो जाओगे. सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर, ब्लैक बोर्ड आपका. मैंने पेज शेयर किया. अदर्स? पेज शेयर किया हुआ है सर आपने. अच्छा, मैंने पेज शेयर किया हुआ है. ओके, एक मिनट, मैं अनशेयर कर लूं, एक सेकेंड. ओके सर. ओके. तो अब मेरे जहाज की डिस्प्लेसमेंट है सपोजिंग 11,000. तो बेसिस दैट 11,000 मैं टेबल बनाऊंगा. सबसे पहला कॉलम थीटा 0, 10, 20, 30 एंड 40. अब मेरे पास 5-5 डिग्री के दिए हुए हैं, लेकिन मैं 5-5 नहीं यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं 5-5 यूज करने लग गया तो मेरा टाइम डबल लगने वाला है. मेरे को टाइम बचाना भी है. ये ओके. 0 की वैल्यू क्या है? 0. टेल मी द वैल्यू फॉर 10 for 11,000 tons. 1.564. 1.564. Tell me for 20. 3.087. 3.087. Tell me for 30. Sir, 4.612. And we have done this from Bravo, correct? Bravo. Yes, sir. And 40. 5.982. 982. All right. अब मैं आ रहा हूं वर्टिकल शिफ्ट की करेक्शन. वर्टिकल शिफ्ट की करेक्शन क्या है मेरी? माइनस kg फ्लूइड
साइन थीटा, एंड उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ दो। ओके, अब सपोजिंग मेरी केजी फ्लूइड है, सपोजिंग 7.56 meters, that is kg solid plus FSC। सपोज ये मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, सपोजिंग, तो मेरा यहां पे क्या आएगा, -7.56 sin 0 is equal to what? It will always be 0. Similarly, -7.56 sin 10 is equal to what? It will always be negative. 313 How much? minus 1.313. 1.313. Okay. Similarly, minus 7.56 sin 20 is equal to 2.586 how much? minus 2.586 2.586 minus 7.56 sin 30. sir minus 3.78. Okay. Sin 40. minus 4.86. Okay. यहां तक सबको समझ आ गया क्या हो रहा है? यहां तक ओके है? Yes sir. अच्छा, सपोजिंग आपने GGH कैलकुलेट किया एंड GGH आया आपका 0.585। सपोजिंग आपका GGH 0.585 आया, तो इसका करेक्शन अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बारी है। तो करेक्शन का साइन क्या होगा? Negative sir, always negative. नेगेटिव सर। ऑलवेज नेगेटिव। तो माइनस GGH cos थीटा लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद भी थोड़ा सा गैप दे दिया और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब मैंने लिखना शुरू किया, माइनस 5. 0.585 cos 0 is equal to minus 0.585. Agreed? Minus 0.585 cos 10 minus 0.576. 0.576. ओके, अब इधर आ जाते हैं। माइनस 0.585 cos 20 is equal to minus 0.55. 55 minus 0.585 cos 30 is equal to minus 0.507. 0.507, and finally cos 40 is equal to minus 0.448. 448। ये ओके है? Is this fine with everyone? लास्ट कॉलम का टाइटल क्या होगा? करेक्टेड जीजेड। करेक्ट। और ये कैसे मिलेगा मुझे? A minus B minus C will give me D, first value,
always minus GGH. Next, 1.564 minus 1.313 minus 0.576 will give me this answer. Decimal 325 minus Decimal 325. 325 and ये नेगेटिव में है. Yes. ओके, अब तीसरे वाले में आ जाओ. 3.087 minus 2.586 minus 0.55. प्लस है माइनस है? Minus है. So minus 0.049. 0.049. 049. ओके, अब फिर नेक्स्ट वाला करो. 4.612 Positive है ना सर 325. 0.325 positive. 0.325 और आखिरी वाला 0.674. सिंस मेरा ये वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ हो रहा है, इसका मतलब मेरी जो लिस्ट है इन दोनों के बीच आएगी. अब मैं इस थीटा और इन दोनों के बीच एक कर्व बनाऊंगा. तो मेरा कौन सा कर्व बनेगा, कौन से टाइप का कर्व? सर T3 बनेगा सर. बिल्कुल ठीक, मेरा T3 बनेगा. तो अब मैं फिर ग्राफ पेपर पे जाता हूं. अब मैं ग्राफ पेपर पे जाता हूं. सो फिर मैंने ग्राफ पेपर लिया. ये मेरा नेगेटिव 0.5 है, ये मेरा पॉजिटिव 0.6 है. तो मैं दोनों को इक्वल रखूंगा ऑलमोस्ट. हाफ तो इसलिए मैं हाफ पे ले रहा हूं. ये समझ में आया? जीरो, 10, 20, 30, 40. ओके, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5. नेगेटिव 0.1, नेगेटिव 0.2, नेगेटिव 0.3, नेगेटिव 0.4 and negative 0.5. All right, 0 पे नेगेटिव 0.58 और नीचे चला गया. देन क्योंकि मेरी लिस्ट 20 और 30 के बीच में है,
तो 20 एंड 30 के बीच में मैं माइक्रो ग्रेजुएशन बना लेता हूँ। 25, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 10 डिग्री का -0.325, 10 डिग्री का -0.325, 20 डिग्री का -0.05, 20 का -0.05, 30 का +0.32, +0.32, 40 का +0.64, 674। अब इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करूंगा। ये ऐसे फ्री हैंड से बना दिया। तो अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री पे ये काट रहा है। तो लिस्ट विल बी इक्वल टू 20 डिग्रीज पोर्ट और स्टारबोर्ड, वॉट एवर क्वेश्चन में जो दिया होगा, या 22 डिग्रीज, सॉरी 22 डिग्रीज। ये आपका जीजेड, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जीजेड कर्व। पूरा का पूरा जीजेड कर्व आपका बेसिकली वो T3 बन रहा है। ये आपका आंसर है। ठीक है, इज दिस ओके?